پڑھانے کی فیس سب بڑی مشکل معاشی مشکلات کا شکار ہے. اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جب عمران نیازی نے حکومت چھوڑی تو کہا کہ ہم 100 روپیہ پیٹرول مہنگا کریں گے. 100 روپیہ پیٹرول سستا کر کر IMF سے معاہدہ توڑ کر باہر نکل آیا. اور آج تک 15 مہینے تک ہماری یہ کوشش رہی کہ ہم اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیں. جہاں پر لوگوں کی معاشی مشکلات ہیں، یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اگر حکومت کاوش نہ کرتی، وزیر اعظم جو ہیں وہ خود آگے بڑھ کر ملاقات نہ کرتے، ہر جگہ جو ہے وہ پاکستان کا کیس نہ پلیڈ کرتے، تو شاید خدا نخواستہ یہ ایٹمی قوت جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جاتا. اس صورت میں معاشی کشتی جو ہے وہ خدا نخواستہ غرق ہو سکتی تھی اور اس سے بدتر حالات ہوتے. تو تاریخ دان جب بھی تاریخ لکھے گا تو ان محرکات کو ضرور لکھے گا. عمران نیازی نے کہا تھا کہ میں IMF کے پاس جاؤں گا تو خودکشی کرنے کو ترجیح دوں گا. عمران نیازی نے اس معیشت پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا. خود تو خودکشی نہیں کی لیکن عوام کو خودکشیوں پر ضرور مجبور کیا. تو یہ سب حقائق عوام کے سامنے ہونے چاہیے. دوسری بات جو انتخابات کی آپ نے کی ہے، اس ملک کا مستقبل جو ہے وہ شفاف انتخابات میں پنہا ہے. آئین اور جمہوریت جو ہے اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے، لیکن یہ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے. ایک سیاسی طالب علم کی حیثیت سے میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، کوئی اور جماعت ہے، یہ تقاضا ضرور کیجئے کہ کوئی بھی حکومت آنے والی ہو، آج تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ایک معاہدہ کرنا چاہیے، ایک میگنا کارٹا کرنا چاہیے، معاشی پالیسیوں کا تسلسل ہونا چاہیے تاکہ عمران نیازی کی طرح دوبارہ سے اس ملک پہ کھلواڑ نہ ہو سکے معیشت کے ساتھ. اور اس جو معاشی ایجنڈا ہے اس کو آئینی تحفظ جو ہے وہ قومی اسمبلی سے حاصل ہونا چاہیے. کم از کم اگلے 10 سال جو بھی آنے والی حکومت ہے وہ ان معاشی پالیسیوں کو، ان کے تسلسل کو برقرار رکھے گی. اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اگر یہ ملک ہے تو سیاست ہے، اگر یہ ملک ہے تو صحافت ہے. اس ملک نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. آج یہ ملک ایسے دہانے پہ کھڑا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایک غلطی ہوئی، کسی نے بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے معیشت سے کھلواڑ کیا تو خدا نخواستہ اس ایٹمی قوت والے ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے. آج کل تمام دنیا میں سب ملکوں کی جو عزت ہے، ان کی جو ایک پاور ہے وہ اکنامک پاور ہے. اکنامک انجن جو ہے آج کل ملکوں کو تقویت بخشتا ہے، اقوام عالم میں عزت بخشتا ہے. اور ہوا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ ملک جو ہے ایک معاشی قوت بن سکے. دوسرے نمبر پر زراعت جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے. پچھلے دنوں میں سپہ سالار اور وزیر اعظم نے مل کر ایک زراعت کے ایجنڈے کے اوپر ایک پوری کانفرنس کی اور ایک پورا لائحہ عمل دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہاں پر بہت چیزیں خراب ہیں. وہاں پر کسان نے گندم میں اچھے پیسے کمائے، اور یہ صوبہ پنجاب یہ ایک ایسی فروٹ باسکٹ ہے جو پورے ملک کو اپنا جو ہے وہ زرعی طور پر، معاشی طور پر مضبوط کر سکتی ہے. تو ہمیں اپنا جو ہے زراعت کی طرف توجہ دینی ہے. سیڈ جو ہے ہمارے وہ بڑے ناقص ہیں، ہمیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر توجہ دینی ہے تاکہ جو ہے وہ اچھا سیڈ کاشتکار کو بر وقت مل سکے.
उसको इंसेंटिव मिल सके, काश्तकार मजबूत होगा तो इस मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी ज़राअत है वो मजबूत होगी। भी आपसे सवाल हुआ, क्लियर का जवाब नहीं आया। इस तरह पीपल्स पार्टी इस बात से क्लियर है कि जो असम्बलियाँ हैं अपने वक्त पर आगे न टिके, उसी वक्त तक तहरीर हो और अपने वक्त पर 60 रोज में इलेक्शन हो। अपनी ख्वाहिश का इज़हार, बराए मेहरबानी अपनी ख्वाहिश का इज़हार बताएं कि क्या ऐसा ही होना चाहिए कि अपने असम्बलियाँ भी आगे न जाएँ, पीछे न जाएँ और इलेक्शन अगर 60 रोज में हो जाए तो ऐसा क्लियर कर। शायद आपने मेरी बात पूरी तरह सुनी नहीं। मैंने कहा कि इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो शफाफ इंतखाबात में पिन्हा है और ये हुकूमत जो है अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर चली और फिर इंतखाबात होंगे जिसका ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। मैं और आप ऐलान नहीं कर सकते। इंतखाबात के हवाले से आप भी बड़े पुरुमीद हैं। हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के भी बड़े बयान आ रहे हैं कि इंतखाबात अपने वक्त पर होने जा रहे हैं। कल की मुलाकात भी थी प्राइम मिनिस्टर की और जरदारी साहब की, उसमें भी ब्रेक थ्रू ये हुआ कि मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात वक्त पर हों। लेकिन कुछ इस तरह की सूरत हाल बन रही है कि इंतखाबात अप्रैल या मार्च में जाने की बातें भी पावर कॉरिडोर्स में ज़ेरे गर्दिश हैं। बतौर पॉलिटिकल वर्कर आप समझते हैं कि वाकई जो इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे? मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर और बतौर पाकिस्तानी समझता हूँ कि इंतखाबात जो हैं उनका इनेकाद होना चाहिए, वक्त पे होना चाहिए। ये जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन की है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस हुकूमत की मियाद जिस दिन ख़त्म होती है उस दिन हम हुकूमत छोड़कर चले जाएं, अबूरी हुकूमत आए और फिर आगे इंतखाबात। अभी यहाँ पर इन्होंने, हमारे भाई ने कहा कि 100 यूनिट, ये उस वक्त जब मैं वज़ीर-ए-आला था हमने पूरा होमवर्क किया और 100 यूनिट बिजली सार्फिन को, आम आदमी को मुफ्त देने का पूरा मंसूबा बनाया। मैंने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वो एक अना की नज़र हो गई और वो ना चल सकी। आज मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि जितनी आज अगर वो मंसूबा चल रहा होता तो आम आदमी जो है, जो आज बिजली के बिल देख के डर जाता है, वो 100 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त उससे मुस्तफ़ीद हो रहा होता। हमने आटा जो है वो तारीख की सबसे बड़ी सब्सिडी देकर सस्ता किया। अद्वियात कैंसर की हो, आम अद्वियात हो, अल्लाह के फजल करम से हमने तमाम सूबे में वो अद्वियात को जो है वो मुफ्त किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आवाम के लिए होनी चाहिए। आवाम जो है उनको रिलीफ मिलेगा तो उनका कॉन्फिडेंस, एतमाद जो है इस सिस्टम पर बहाल होगा। तो इसलिए जो भी इंतखाबात के नतीजे में हुकूमत आती है, मेरी ये दुआ है कि वो आवाम के भले के लिए काम करे और इस हुकूमत ने जो 15 माह में इमरान नियाज़ी की गलतियों को सुधारने की कोशिश की, चाहे वो दोस्त ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हों, जब शीशा टूटता है तो किरची किरची करके उसको जोड़ना पड़ता है। तो इस मुल्क की सियासी क़यादत ने जिस तरह दोस्त ममालिक के साथ वो टूटे हुए रिश्तों को सवार किया, दोबारा दोस्ती हुई, सीपैक जो इस मुल्क की मुआशी ताकत का दिल है, अरबों डॉलर की जो अपना जो है वो सरमायाकारी है, उसको दोबारा से बहाल हुआ, चीन का एतमाद दोबारा बहाल किया। तो मैं समझता हूँ कि दर्दमंदी के साथ पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। और यहाँ पर यह बात ज़रूरी है, जिस तरह 14 अगस्त आने वाला है, अल्लाह ताला इस मुल्क का झंडा हमेशा हिमालय की चोटियों से भी बुलंद रखे। लेकिन जब क्लासरूम में ऐसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, राशिद मिन्हास की शहीद की कुर्बानी को बताया जाता है, अजीज़ भट्टी शहीद की कुर्बानी को बताया जाता है, इल्मदीन शहीद की कुर्बानी को बताया जाता है, कैप्टन शेर खान जो टाइगर हिल पर शेरों के लड़ा उसकी कुर्बानी को उजागर किया जाता है। आज इमरान नियाज़ी ने 9 मई को वो जहर घोला कि उन्हीं शहीदों के मुजस्समों को मिसमार कर कर उनकी
खुदा न खास्ता तज़लील की गई, शहीदों की माँओं का दिल टूटा जो आज सरहद पर अपने बीवी बच्चों से दूर पाकिस्तान की हिफाजत के लिए फौजी, रेंजर्स, सिपाही तैनात हैं, उनका दिल टूटा। तो ऐसे जो गुनाह हैं वो नाकाबिले मुआफ़ी हैं, चाहे वो जिना हाउस पर आग लगाना है, चाहे वो एम्बुलेंस रोज़ को मरीज को निकाल उसको आग लगाना है, रेडियो पेशावर वहाँ पर उसको आग लगाना है। ऐसे मुजरिमाना अमल जो हैं वो तभी रुकेंगे जब उनको करार वाक़ई सज़ा मिलेगी और उन शहीदों की माँओं को तभी तस्कीन मिलेगी, उनको तभी सुकून मिलेगा जब शहीदों को, कुर्बानियों को रुसवा करने वालों को सज़ा मिलेगी। यही इसी में पाकिस्तान की भी तक़वियत है, पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा। जो कौमें अपने शहीदों को, अपने मोहसिनों को भूल जाती हैं, वो कभी तरक्की नहीं करती। बताइएगा कि भारत जो है वो चांद के ऊपर अपना मिशन भेज रहा है और पाकिस्तान अभी तक गंदम की पैदावार जो है वो बढ़ाने पे लगा हुआ है। क्या समझते हैं जो सियासी जमातों की हुकूमतें जो आई या जिन डिक्टेटरों ने मार्शल लॉ लगाया, कौन इन नाकामियों का जिम्मेदार है, किसको ठहराते हैं? देखिए, ये सच्चाई सबको पता है कि यहाँ पर 30 साल से ज़्यादा जो है डिक्टेटरशिप रही, जमहूरियत को पनपने का मौका कम मिला। ये मजमूई गलतियों का नतीजा यहाँ पर आज खड़े हैं हम, किसी एक का कसूर नहीं है, लेकिन जहाँ पर गलतियों को सुधारना चाहिए वहाँ पर जो मैंने कहा कि 10 साला मुआशी मंसूबा जो है वो कौम के सामने लाना चाहिए, उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए, तभी ये एटमी कुव्वत जो है तरक्की कर सकेगा और आवाम को जो है रिलीफ उसी सूरत में मिलेगा जब मुआशी पॉलिसियों का तसलसल होगा और ये मुल्क तरक्की करेगा। क्या नून लीग ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया आम इंतखाबात के हवाले से, और आपके समझते कि आइंदा अगर आम इंतखाबात होते तो नून लीग कहाँ खड़ी है, इत्तेहादियों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी या अलग उनका धड़ा होगा? दूसरा मेरा सवाल ये कि जो 9 मई के लोग थे जिनके कहने पर ये सब कुछ हुआ, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, उन्हें सज़ा क्यों नहीं देते? उनको सबको अपना जो है वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनकी शनाख्त हो चुकी है और आप जल्द देखेंगे इंशाअल्लाह कि उनको अपना जो है ना कटहरे में लाया जाएगा। रही बात इंतखाबात की, तो मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है? मुस्लिम लीग नून आवाम के साथ खड़ी है। यकीनन मैंने आवाम की मुश्किलात का जिक्र किया, लेकिन अपने पॉलिटिकल कैपिटल को एक तरफ रखकर हमने मुल्क के लिए IMF के साथ मुआहदे को दोबारा से बहाल किया। ये मुआहदा बहाल ना होता तो पता नहीं इस मुल्क की कितनी और मुआशी तबाही होती। कोई चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से भी कुछ साल का भी महंगाई जो है उस वक्त वहाँ को सामना करना पड़ा है। तो थोड़े सालों के ज़्यादा महंगाई, थोड़े सालों के ज़रिए आप क्या करेंगे इस वक्त? वफाक में आपकी हुकूमत है कि कुछ निकाल सेट को कहा जाए कि वो एक्टिव हो, ये कुछ साल का महंगाई का कम से कम आवाम से मलबा जो है वो हटाया जाए। मेरा ख्याल है आपके सवाल का जवाब यही है कि ये एक अबूरी हुकूमत है, इसका अवलीन फ़र्ज़ है कि बर वक्त इंतखाबात हो जाएं, बर वक्त इंतखाबात हो जाएं, शफ़ाफ इंतखाबात के नतीजे में जो भी हुकूमत आए उसकी ज़िम्मेदारी है कि फिर वो महंगाई को भी काबू करे, ऐसी मुआशी पॉलिसियाँ लेके आए जिससे जो है मईशत बहाल हो। बहुत शुक्रिया।